In this lecture, we will study about the validity condition for the Born approximation. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो टोटल वेव फंक्शन है साई आर, दिस केम आउट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस आर डैश ओवर magnitude of r minus r dash u r dash exponential I k dot r dash dq r dash. As we know already that for the Born approximation, total wave function must not be greatly different to the incident wave function. It means this part, this scattering part, psi scattered, should be less than exponential I k dot r. Then if this is very much less than exponential I k dot r, then we can neglect this and these both will be approximately equal. So what is the validity for the Born approximation? This is the validity condition for the Born approximation. Psi scattered should be much less than psi incident, and psi incident is exponential I k dot r. So psi scattered much less than exponential I k dot r. और psi scattered की आप वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आप पुट करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ psi scattered, then this part should be less than exponential I k dot r. और at the center of potential where r equal to 0, तो वैलिडिटी कंडीशन becomes, अगर आप प्रीवियस इक्वेशन इस इक्वेशन में आप लिख दें r इक्वल टू 0, देन यू हैव दिस एक्सप्रेशन 2a. और इफ यू इंटीग्रेट इट dq r dash, that is equal to r dash square sin theta dash dr dash d phi dash d theta dash, then the validity condition becomes this one, mu over 2 pi h cross square volume integral exponential I k r dash over r dash u r dash exponential I k r dash cos of theta dash r dash square sin theta dash dr dash d theta dash d phi dash, and it should be less than 1. We already know that d phi dash integration is equal to 2 pi, और similarly ये इंटीग्रेशन जो है 0 to pi exponential I k r dash cos थीटा डैश sin थीटा डैश d थीटा डैश, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और ये मानते हुए कि cos थीटा डैश इक्वल टू t है, तब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होके जो मिलेगा अपन को -1 ओवर I के आर डैश एक्सपोनेंशियल माइनस I के आर डैश माइनस एक्सपोनेंशियल I के आर डैश, ये मिलेगा. और हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये जो मिलेगी ये टर्म एक्सपोनेंशियल I के आर डैश माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस I के आर डैश ओवर 2i इंटू 2 ओवर के आर डैश, और दिस इज इक्वल टू 2 ओवर के आर डैश साइन ऑफ के आर डैश. एंड इफ वी पुट दिस वैल्यू इन द वैलिडिटी कंडीशन, देन यू हैव दिस इज this equation 2 mu over h cross square magnitude 0 to infinity exponential I k r dash u r dash sin k r dash d r dash. This should be much less than 1. So this is again the validity condition of the for the Born approximation. It means 2a and 2b are the validity condition for the Born approximation. And if we consider that k r dash tends toward 0, it means for low energy, then sin of k r dash will be equivalent to k r dash, or exponential I k r dash, this will be equivalent to 1. और ये वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास जो वैलिडिटी कंडीशन मिलेगी that will be 2 mu over h cross square magnitude of 0 to infinity r dash u r dash d r dash
and this should be less than 1. और यदि हम जो पोटेंशियल है, इफ द पोटेंशियल इज ऑफ हाइट u0, यानी u r डैश को अपन u0 को बराबर मान लें और पोटेंशियल की जो रेंज है वो r0 हो, तो अगर आप यहाँ r0 और या u0 रख दें और जिसे इसे dr0 कर दें और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, तो आपके पास जो कंडीशन मिलेगी दैट विल बी इक्विवेलेंट, दैट विल बी 2 म्यू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर magnitude of u0 r0 square by 2. This should be much less than 1, and then you are having equation number 3b, mu magnitude of u0 r0 square over h cross square, this is much less than 1. So this is the validity condition for the special case for low energy. It means when kr dash tends toward 0. Similarly, second case is for the high energy. हाई एनर्जी लिमिट में हम देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल IKR की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 या मिनिमम -1 हो सकती है. तो एक्सपोनेंशियल IKR ऑसिलेट्स इन बिटवीन 1 एंड -1 फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू ऑफ KR डैश. ये KR डैश की वैल्यू पर डिपेंड करेगा KR डैश की वैल्यू कितनी है. तो मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल IKR डैश के मैग्नीट्यूड की, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1. और इस केस में जब साइन ऑफ KR डैश की वैल्यू लेंगे तो वो साइन ऑफ KR डैश विल बी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यानी KR डैश के इक्विवेलेंट होगी. और साइन ऑफ KR डैश को अपन KR डैश लिख दें तो वैलिडिटी कंडीशन 2 म्यू ओवर h क्रॉस स्क्वायर k 0 to infinite KR dash UR dash DR dash is much less than 1, ये बन जाएगी. और पहले की तरह से ही हम पोटेंशियल की जो हाइट है उसको u0 मान लें, यानी कि UR dash इज इक्विवेलेंट टू u0, और इस पोटेंशियल की जो रेंज है वो r0 हो, यानी कि r dash को आप r0 से रिप्लेस करते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो आपको जो वैलिडिटी कंडीशन मिलेगी दैट विल बी 2 म्यू ओवर h क्रॉस स्क्वायर k मैग्नीट्यूड ऑफ u0 kr0 स्क्वायर बाई 2, विच इज मच लेस देन 1. एंड फाइनली दिस इज द वैलिडिटी कंडीशन फॉर द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन व्हेन एनर्जी इज हाई. So this is about the validity of Born approximation. और इस चैप्टर का जो लास्ट एक टॉपिक है Born approximation फॉर कूलाम पोटेंशियल, वो मैंने आपको PDF नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है. इजी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आप एक बार ढंग से कर लें तो आपको कूलाम स्कैटरिंग के लिए बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो दिस इज होल अबाउट द यूनिट 1, दैट इज स्कैटरिंग. थैंक यू.